Good morning. Let's learn how matter changes its state. So the next topic is matter changes its state. Matter means you all know that. Fine. Suppose if one matter is solid, so it can convert into liquid. And how it can convert into liquid? By two ways. And then it convert into gas or vapor. Fine. And then if we cool down, it again come back to solid. This is the reversible sign of reversible reaction. Fine. So there are two ways by which the matter can change state. एक matter अपनी phase को change करके दूसरी phase में आ जाता है. कैसे? पहला, अगर हम उसे temperature दें, if we heat, change हो गया? Fine. दूसरा, अगर हम उस पे pressure apply करें, if we apply pressure, so solid can convert into liquid and liquid can convert into gases. Even gas can convert into liquid if we apply pressure. And gas can convert to solid if we apply pressure. Like one example I'll give you, that is called dry ice. Dry ice is known as solid carbon dioxide, which is actually a gas. लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो जैसे आइस होती है आपके घरों में, वो बस आइस जैसे आपने उसको हाथ में रखा, हाथ में नहीं रख सकते उसको. वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज -78 डिग्री सेल्सियस. फाइन. सो अगर आप ग्लव्स पहन के उसको अगर पकड़ते हैं तो द मोमेंट यू होल्ड इट, ग्रेजुअली इट इवापोरेट्स. फाइन. सो लिक्विड फेज लेते ही नहीं, वो गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है और सॉलिड से जैसे ही आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू गैस. So let's see how by applying temperature the matter changes its state. Fine. So there are two ways by which matter changes state. The first one is by applying temperature and the next one is by applying pressure. That we'll learn in the next video. So the first one is by applying temperature. So by applying heat, the molecules are very close to each other. They convert to the molecules which are a little bit far from each other. Then by applying more heat, they go very far and they convert into gases. How it takes place, temperature कैसे करता है, that we learn here now. Let's see. I have taken a beaker. Beaker में बहुत सारी I have kept ice cube और मैंने यहाँ से बर्नर दिया. मैंने उसमें I have started giving heat. मतलब इसको I have started giving heat. अब क्या होगा? The sooner I started giving heat and gradually थोड़ा यहाँ से ये क्या बनना शुरू हो जाएगा? Water. Fine. Ice converts into water, liquid. फाइन. और जैसे ही ये वाटर बनना शुरू होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा धीरे धीरे? अभी टेम्परेचर कितना है? -10. फाइन. सो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है पहले -10 होगा, फिर स्टार्ट इंक्रीजिंग और ये पहुंच जाएगा 0 डिग्री एंड इट stop here unless all the ice converts into liquid. ऐसा क्यों? Why it is so? Why so? You are continuously giving heat, मगर 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा ही नहीं. दिस इज आइस मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? पार्टिकल से अंदर. ठीक. अब आई एम गिविंग दिस पार्टिकल हीट. मैं इसे हीट एनर्जी दे रही हूँ. As soon as it gets heat, इसको हीट मिली तो क्या हो गया? These molecules they start vibrating. ये वाइब्रेट होने लगे. जैसे ही ये वाइब्रेट होने लगे, so क्या हो गया? Their kinetic energy means kinetic energy. जो kinetic energy हो गई वो increase हो गई. And this increased kinetic energy is recorded in thermometer. फाइन. किसकी काइनेटिक एनर्जी? जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द थर्मोमीटर. एज द टेम्परेचर रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज एक्चुअली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो एनर्जी है इट इज यूटिलाइज. नाउ 0 डिग्री सेल्सियस पे नाउ जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी. वो कहाँ यूटिलाइज होगी? इट इज यूटिलाइज टू वीक द बॉन्ड्स. अब जो हीट एनर्जी में दे रही हूं,
इट इज नॉट यूटिलाइज बाय दीज. अगर ये यूटिलाइज होते तो यहाँ रिकॉर्ड होता, मगर अब जो हीट एनर्जी है, जैसे अब जो हीट एनर्जी है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज टू वीक दीज बॉन्ड्स. इन बॉन्ड्स को वीक करा जा रहा है. वाई? तभी तो शेप चेंज होगा आइस का और वो पानी बन जाएगी. ठीक, तो ये जो बॉन्ड्स है इनकी वीकनिंग के लिए दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड which is actually not recorded in the thermometer. तो एनर्जी कैसी है? छुपी हुई है. That is latent. Latent means hidden. This heat energy is known as latent heat. और इस प्रोसेस को हम कहेंगे latent heat of fusion. और जैसे ही बॉन्ड वीक हो रहे हैं ये डिशेप हो रहा है. जैसे ही बॉन्ड वीक हो रहे हैं इनका शेप बदल रहा है. और जैसे ही शेप बदलेगा तो मोमेंट शेप बदलेगा तो क्या होंगे? सॉलिड से ये आइस होके मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में. फिर इसका शेप बदलेगा, फिर ये मेल्ट हो जाएगी. सो द रिमेनिंग हीट एनर्जी जो है वेयर इट इज यूजिंग, दे आर यूजिंग टू ब्रेक दीज बॉन्ड विच इज एक्चुअली नॉट रिकॉर्डेड इन द थर्मोमीटर. इसीलिए टेम्परेचर कहाँ पे रुका है? 0 डिग्री, अनलेस जितनी आइस है वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए. ओके, सो द स्टोरी कंटिन्यूज. वो जो आइस थी, जो सारी आइस क्या बन गई? वाटर. उसी वाटर पे आते हैं. टेम्परेचर अभी भी क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस. सारी आइस बन गया पानी. अब वन फेज इज कंप्लीटेड, मीन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. अब हम देखेंगे हाउ द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर. पानी वही है जो आइस थी. ठीक, अब आई एम गिविंग हीट, कंटिन्यूअसली हीट मिल रही है. ठीक है, अब कंटिन्यूअसली हीट मिल रही है, पानी गर्म हो रहा है. पानी गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर कम्स टिल 100 डिग्री सेल्सियस एंड सम ऑफ द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर. टेम्परेचर क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ द टेम्परेचर स्टॉप्स. सो टेम्परेचर इज नॉट increasing after 100 degree. Why? So the answer is, चलो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे आ जाओ. ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल. इतना सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं. ये एक, दूसरा, तीसरा, ये लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, ये सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है. मैंने हीट देना शुरू किया. द मोमेंट आई स्टार्टेड गिविंग हीट टू दिस वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है. फिर फाइन, तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. फिर से और हीट दी और बढ़ गई. सो द काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही मैंने आई हैव गिवन हीट एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी जो थी मॉलिक्यूल्स की, सो एज आई हैव गिवन द हीट एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. ओके, इंक्रीजेस एंड इट इज रिकॉर्डेड. इट इज रिकॉर्डेड कहाँ पे? थर्मोमीटर में. फाइन, इट इज रिकॉर्डेड. इट इज रिकॉर्डेड. काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है टिल कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस. वाई 100 डिग्री सेल्सियस? बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water. So what is boiling point of water? When it reaches to 100 degree Celsius, these molecules they will not further absorb heat. अब जो मैं heat दे रही हूँ that is actually used to break these bonds. और अब ये bonds क्या होंगे? वीक तो पहले ही से हो गए थे. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फ्री होके उड़ गया. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फ्री होके उड़ गया. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फ्री होके उड़ गया. ठीक. So let's see heat energy I have given, increase the kinetic energy which is recorded. Now जो heat energy है where it is used? It is used to bond, which is actually not recorded in your thermometer. So what we call? It is called again the latent heat, and this time it is called latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है इसे. ठीक. लेटेंट मीन्स छुपी हुई. वो छुपी हुई हीट एनर्जी विच दिस मॉलिक्यूल हैज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स so that it becomes free. Now let's see the next topic, that is sublimation. So sublimation is a process in which
The solid directly converts into vapor. The very common example is camphor, जो कपूर होता है, जैसे हम उसको जलाते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में. थोड़ा सा एक फेज आता है बहुत ही छोटा जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में आता है, बट इट डायरेक्टली वेपराइज. सो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. फाइन. मॉथ बॉल्स होती है, जब आप कपड़े रखते हैं ना, गर्मियों के कपड़े रखते हैं बॉक्सेस में, सो व्हाट यू पुट, नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं. तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जब आप कुछ मंथ्स बाद व्हेन यू ओपन द कबर्ड अगेन और ओपन द बॉक्स अगेन, यू विल फाइंड कि वो गायब हो गई हैं. तो नेफ्थलीन बॉल कहाँ गायब हो जाती है? सो हाउ इट हैपेंस? सो हीट एनर्जी ट्रैप करके जो सॉलिड होता है डायरेक्टली इट वेपराइज. फाइन. सो दैट इज नेफ्थलीन बॉल्स, या उन्हें मॉथ बॉल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट वन मोर एक्सपेरिमेंट दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट, तो you can be easily understand how it happens. So if you take ammonium chloride, so this is a figure, so this is a setup, ये this is a tripod stand, ये stand है, हाँ, and in this china dish, so ammonium chloride is a very common chemical you must have seen in chemistry labs. So ये क्या होता है, जैसे सॉलिड पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है. तो इसको चाइना डिश में मैंने सॉलिड पाउडर फॉर्म लिया है एंड आई हैव गिविंग हीट. तो जैसे ही मैंने इसको हीट दी, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपराइज. ये वेपराइज हो गया, मगर इस इन्वर्टेड फनल को मैंने सील करा है विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग. ठीक. तो क्या होगा, सारे वेपर्स यहाँ इकट्ठा हो गए. आफ्टर सम टाइम जब ये कूल होंगे तो यू विल सी दैट दीज अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स आर डिपॉजिट नियर द वॉल्स. जैसे जैसे क्योंकि वेपराइज होंगे, ऐसे वेपर्स हो गए ना. अब वेपर्स धीरे से यहाँ से टकराएगा, ठंडा होगा, और यहाँ आपको ऐसे क्रिस्टल दिखाई पड़ेंगे. सो सी, कैन यू सी दैट टू स्टेजेस. वन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर. फाइन. एंड एज द वेपर कूल डाउन तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. सो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड वेपर कूल्स डाउन इज नोन एज डिपोजिशन. One more example I can give you, that is solid carbon dioxide, solid CO2. So what is solid CO2? क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है. सो एट अ वेरी हाई प्रेशर, इसको बहुत ही हाई प्रेशर दिया जाता है और बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसे कंप्रेस किया जाता है. When we do this, then it converts into solidify form. Then it converts into a solid form, जिसे हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं. फाइन. ड्राई आइस के नाम से भी वी कंसिडर ड्राई आइस. और इस ड्राई आइस को जैसे ही आप बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, दिस सॉलिड अगेन कन्वर्ट्स इनटू वेपर. ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन, क्यों बच्चों? बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, दीज सॉलिड्स दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और सराउंडिंग से हीट लेते हैं. जैसे ही उनके बीच के बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक होते हैं और ये अपनी फेज चेंज कर देते हैं. मीन्स एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाता है. I hope it is understood. So now let's see how the matter changes its phase by applying pressure. Okay. So I have this balloon. Okay. Now you all know that it is filled with gas. तो मैं इसे दबा रही हूँ. I am applying pressure. So can you see that the gas inside this balloon is changing into liquid? Can you see that? No. But I am applying pressure. देखो प्रेशर लग रहा है ना, प्रेशर लगा रही हूँ, दब रहा है, और जैसे ही प्रेशर छोड़ रही हूँ, अगेन कम बैक टू इट्स प्लेस. इसका मतलब देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इट्स फेज, नॉट ओनली प्रेशर. सो लेट्स सी व्हाट आर दे. So I have taken this is a cylinder. Fine. So we all know that suppose this is a gas. So gas molecules are very far from each other. They are very far. Fine. I have applied pressure. जैसे ही मैं pressure apply करती हूँ,
Fine. When I applied pressure, the molecule come more closer to each other. As the molecule come more closer to each other, they reduce their kinetic energy. और जब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होगी और पास पास आ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो ज्यादा घूमेंगे, वाइब्रेट करेंगे, पास पास आ जाएंगे तो दे गेट लेस प्लेस. तो क्या हो जाएगा, बहुत दूर थे अभी, फाइन, तो हमने इसे कंप्रेस करा पास पास लाए. तो क्या, व्हेन दे कम क्लोजर सो द गैस liquefied. And the best example is your gas cylinder. जो आपके घर का गैस सिलेंडर है जिसे हम क्या कहते हैं, LPG. तो उस LPG में कौन सी गैस है? Pause the video and tell me the answer. And the gas is N-butane. Butane गैस होती है उसमें, ठीक है. So it's a natural gas. Fine. So उस गैस में मगर आप कभी सिलेंडर को हिलाइए तो आपको लगेगा उसमें पानी है. So lots of gas is actually compressed. जो हम उसे कंप्रेस करते हैं तो हम उसमें क्या, किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, हम लिक्विड फॉर्म में. फाइन. सो दैट मैंने बलून से दिखाया. इट इज नॉट ओनली प्रेशर, इट इज टेम्परेचर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. When you reduce temperature and when you apply pressure, the gases molecules they come closer. And when they come closer, temperature is also reduced. Fine. तो वो दूर दूर नहीं जा पाते. Then they change their phase and then the gas converts into liquid. ठीक है. तो क्या हुआ, हमने इसमें क्या क्या दिया, हमने इसमें हाई प्रेशर दिया और हमने इसमें टेम्परेचर को रिड्यूस किया. क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलता रहेगा, जैसे मिलेगा तो वो फिनोमिना होगा ना, पढ़ा है हमने, टेम्परेचर मिला, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, फिर वीक हो गए बॉन्ड, देन दे एस्केप. गुड, यू रिमेम्बर दैट. फाइन. सो टेम्परेचर भी रिड्यूस करते हैं और प्रेशर भी अप्लाई करते हैं. Then the gas changes into liquid. Fine. So this is by applying pressure. One phase, one more example. सॉलिड को गैस से और गैस को सॉलिड से. कार्बन डाइऑक्साइड भी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जल्दी से बताओ. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इट्स अ गैस. ठीक. अब गैस को हम कंप्रेस करते हैं. वी कंप्रेस द गैस एट वेरी हाई प्रेशर एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, टेम्परेचर को और रिड्यूस करते हैं और तब ये जो गैस है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में. फाइन. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं. इसका टेम्परेचर जो होता है बच्चों, इट इज -78 डिग्री सेल्सियस में होता है. So, in a nutshell, the latent heat of fusion and heat of vaporization. So, children, if you understood the topic well, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And in next video, we'll learn evaporation. So, be ready for the next video. Thanks for watching.